السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ خیر جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان عظیم ہے، آقائے دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہے، میرے جد حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے، حضور غوث اعظم، حضور غریب نواز رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہے، میرے پیر کامل رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ ہے کہ آج کے مقدس مبارک مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ تمام عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکبادی دیتے ہیں، اور یہ فرض سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کو کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، ماہ رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، اللہ کی رحمت تمام مسلمانوں کو گھیر لی ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ ماہ مقدس آ گیا ہے جس میں ہر مسلمان خوشی منانا چاہیے۔ ہر مسلمان جب خوشی مناتا ہے تو ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا چاہیے، سلام کرنا چاہیے، خوش ہو کے ملنا چاہیے۔ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہر مسلمان خوش رہتا ہے، اور خوش ہونا بھی چاہیے۔ ناراضگی اللہ کو پسند نہیں ہے، خوشی اللہ کو پسند ہے، محبت اللہ کو پسند ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی اور پرہیزگاری یہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ مہینہ جب رمضان المبارک آتا ہے تو ہر بندہ اللہ کو راضی کرنے والا کام کرتا ہے، کوئی بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، گورا ہو، کالا ہو، یا کیسا بھی انسان ہے، ہر قسم سے بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہو۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور امت کو اور نبیوں کی امت کو یہ مہینہ نہیں عطا فرمایا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے۔ ہم امت محمدیہ میں سے ہے، ہم خوش نصیب ہے، ہم اپنے آپ کو فخر کرے کہ ہم کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جس امت میں پیدا ہونے کی تمنا نبیاں فرماتے تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہ مجھے نبی نہ بناتا، تیرا حبیب کا امتی بناتا تو اچھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تمنا تھی یہ۔ ہم تو مسلمان ہیں، خوش نصیب ہیں ہم کہ اللہ ہم کو موسیٰ علیہ السلام کو جو تمنا تھی وہ تو ہم تو اللہ کے نبی کی امت میں سے ہے۔ ہم رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں ملا ہے، جب رمضان کا مہینہ ملا ہے تو عام دنوں کی طرح یہ دنوں کو نہیں گزرنا چاہیے۔ میرے مسلمان بھائی، یہ پیغام ہے میرا کہ رمضان کے دنوں میں وہ بندے تمام روزے سے رہتے ہیں۔ کچھ حضرات ہوٹلوں میں جاتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتے ہیں، کچھ حضرات ادھر ادھر گھومتے ہیں، عام دنوں کی طرح گزارتے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، یہ میرا پیغام ہے۔ اللہ کے رسول کا واسطہ دیتے ہیں، ایسا کام مت کیجیے کہ آپ بھی روزہ رہ کر گزاریے، سحری کریے، آپ دیکھیے کتنا مزہ ملتا ہے، کتنا لطف آتا ہے جب بندہ روزہ رہتا ہے، کتنی محبت اور کتنے انعامات اللہ ہم کو عطا فرماتا ہے۔ رہ کے دیکھیے تو صحیح۔ اور کئی سارے حضرات رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو بولتے کہ نہیں جی کام ہوتا تھا اس لیے ہم روزہ نہیں رہتے، ایسا کئی حضرات بولتے۔ نہیں، ایسا مت کیجیے، آپ کام کرتے ہوئے روزہ رہیے۔ کام کرنا بھی حلال، کام کرنا بھی عبادت ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، ڈبل آپ کو ثواب مل جائے گا۔ یہ بھی عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، لیکن آپ وہ خالی کام کے لیے تمام روزوں کو چھوڑ رہے، یہ مناسب نہیں۔ سال میں ایک دفعہ ایک مہینہ اللہ عطا فرمایا ہے، کام کرتے ہوئے روزہ رہیے، اللہ اپنی رحمتوں سے بندوں کو نواز دے گا اور خوشحالی عطا فرما دے گا۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے، دیکھیے بندوں کے لیے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو شیطان کو، حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ شیطان کو زنجیروں سے باندھ کر، رسیوں سے باندھ کر
समंदर में फेंक दिया जाता है। शैतान बंद हो जाता है। जब शैतान बंद होता है तो हम तो ज्यादा ही बंद करना चाहिए, हम रोजे रखना चाहिए, अल्लाह को पुकारना चाहिए। हमको कोई भटकाने वाला है ही नहीं, हमको कोई भटकाने वाला नहीं है, तो हम खुश होना चाहिए। इसके बजाय कुछ हजरात निकलते इधर इधर फिरते, उधर फिरते, इधर जाते उधर जाते, रोजों को छोड़ देते। ऐसा मत कीजिए। आप रोजे रहिए। देखने वाले लोग देख के, गैर लोग देख के परेशान हो जाना चाहिए कि मुसलमान है। मुसलमान रोजे रखना चाहिए, काम भी करना चाहिए, इबादत भी करना चाहिए, नमाजें पढ़ना चाहिए, तिलावत करना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, दुरूद शरीफ की महफिलें सजाना चाहिए। सुनिए, ये मुकद्दस व मुबारक महीना अल्लाह हमको अता फरमा दिया। एक बात बता रहा हूं, गौर से सुनिए आप। रमजान मुबारक आता है तो हर मस्जिद को सजाया जाता है। हर मस्जिद में देखिए आप, हर मस्जिद को कलर वगैरह करते, साफ सुथरी करते, नहीं है तो चीज ला के लगाते, मस्जिदों को खुशनुमा करते। क्यों करते ऐसा, जरा गौर कीजिए आप। इसलिए करते कि अल्लाह तबारक व तआला रमजान मुबारक का महीना आने से पहले 11 महीने अल्लाह जन्नत को सजाता है। 11 महीने रमजान के आने से पहले तक जन्नत को सजाया जाता है। सजाने के बाद जब 11वें महीने के बाद जब रमजान मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजों को अल्लाह खोल देता है। अल्लाह ताला बता रहा है बंदों को कि ऐ लोगों, 11 महीने हमने जन्नत को सजाया है। ऐ लोगों, तुम अपने दिलों को सजा लो। रमजान का महीना आ रहा, अपने दिलों को सजा लो, अपनी तकदीर को संवार लो। इसलिए कहा गया है, ऐ सोने वालों जागो जरा, तकदीर संवरने वाली है। ऐ सोने वालों जागो जरा, तकदीर संवरने वाली है। ऐसे में रसूल प्यारे की अब रहमत बटने वाली है। क्या खूब कहा है, देखिए, गौर कीजिए आप। माह रमजान मुबारक में लोग खुश खुश होकर सहरी करते हैं, उसके दिन तमाम भूखे रहते हैं, रोजा रखते हैं, फिर शाम को क्या करते, इफ्तार करते हैं। सबको मालूम है कि रमजान का महीना आ रहा, रोजे रखना है। कई ऐसे हजरात है, हमने देखा है, उनकी गुफ्तगू को देखिए कि रमजान मुबारक के आने से 4 महीने पहले बोलते, अरे रमजान और अब 4 महीने बाकी है, खुश खुश होके बोलते। कितने मुबारक बंदे हैं वो, जो रमजान का आने से पहले खुशी मनाते हैं। हमको खुश होना चाहिए, तो छोटी सूरत नहीं करना चाहिए, खुश होना चाहिए। रमजान का महीना आ रहा। मौलाना रूम फरमाते, क्या फरमाते मौलाना रूम के, एक अफ्रीका में एक रूल था, एक बादशाह रहता था, वहां का कानून था। वो कानून क्या था कि एक बादशाह बनाते थे, 1 साल तक वो हुकूमत करता था। वो 1 साल हुकूमत करने के बाद वो बादशाह को ले आके जंगल में छोड़ देते थे। अब जंगल में छोड़ने के बाद, जंगल में, अफ्रीका का जंगल बहुत बड़ा जंगल, सांप शेर तमाम चीज वहां रहते थे, तो वो बच नहीं सकता था। और बादशाह बनाने के लिए फिर बादशाह को जंगल में छोड़ दिए, तो फिर सुबह उठते थे, उठ के समंदर के किनारे आके बैठ जाते थे। वो जब समंदर के किनारे बैठे, जो पहला बंदा जो कश्ती में आता था, वो बंदे को ले आते थे, फिर उसको बादशाह बनाते थे। अफ्रीका में एक कानून, ऐसा कानून था। ऐसा ही वह मौलाना फरमाते कि हिकायत बयान कर रहे कि देखने लगे कि इंतजार करने लगे, तमाम गांव के लोग इंतजार करने लगे। ऐसे में एक शख्स आया, ऐसा कई लोग आए, बादशाह बने, जंगल में छोड़ दिए, लेकिन ये वक्त एक आदमी आया, आकर वो कश्ती में बैठ के आ रहा था, उसको पकड़ के ले आके बादशाह बना दिया उसको। वो हैरान हो गया, मुसाफिर था, हैरान हो गया, बादशाह तो बन गया। उसके बाद जो के दाना और बीना था, इशारा भी था, हमको ऐसे ही बनना है। तो वो क्या करा, वो पूछने लगा इनका कानून क्या है, कितने दिन तक हुकूमत करना, 1 साल तक हुकूमत करना। जब 1 साल की हुकूमत हो गई तो जंगल में छोड़ते। तो वो बादशाह ने कहा, तमाम सुनने के बाद, जो जंगल में छोड़ते हो जंगल को साफ कराने लगा, धीरे धीरे जंगल को साफ कराने लगा। जैसा ही जंगल को अंदर साफ करने लगा, साफ करने के बाद वहां जंगल में अच्छे बेहतरीन महल बनाया, पानी की सहूलत, हर वो चीज की सहूलत वो करा। उसके अंदर करने के बाद जब बादशाह का 1 साल मुकम्मिल हो गया, तो उसको बादशाह को ले आके जंगल में छोड़ दिए। जंगल में छोड़ दिए, क्योंकि दाना और बीना था, वक्त आने से पहले तमाम इंतजाम कर लिया।
तो जंगल में जैसा छोड़ दिया, उतर के जंगल में गया और अपने महल में खुश खुश रहा हो। तो मौलाना फरमाते कहे लोगों, वक्त आने से पहले अपना इंतजाम कर लो। माह रमजान मुबारक का महीना आ रहा, आप इंतजाम कर लो। माह रमजान मुबारक में अल्लाह ताला हर चीज से नवाजता है, बंदों को रहमतों से नवाजता है, इनामत से नवाजता है, बरकतों से नवाजता है। अल्लाह ताला खुशहाली अता फरमाता है, बीमारियों को दूर फरमाता है। नफ्स को मारने का सही चीज रोजा है। तो रोजा आने से फरमाते मौलाना कि रमजान मुबारक का महीना आ रहा, तुम इंतजार करके अपने आप को तैयार कर लो। जो जहां अंधेरा गड़ा होता है, जिसको खबर कहते हैं, जहां जाके एक दिन सोना है, वो जाने से पहले इंतजाम कर लो, अपने आप को इंतजाम कर लो। अपने अंधेरे गले के लिए रोशनी कर लो। तो क्या करना है? रोजा रखना है। रोजे के दिन को जाया मत कीजिए। हम ये समझते हैं कि हमारा एक एक दिन हमारा बढ़ रहे, हमारी उम्र बढ़ रही, समझ रहे उम्र बढ़ रही नहीं, हमारी एक दिन घट रहा है। जरा गौर करने की मुझे माह रमजान का मुबारक जैसा मुकद्दस महीना आने के बाद इंसान उच्चारी करके सहरी करता है, रोजा रखता है, इफ्तार करता है। अपनी जो जंगल में जो मौलाना रूम ने फरमाया है कि जो बादशाह जंगल की पूरी साफ सुथरा करके एक महल बना के सुकून में जंगल में चले गए, उसी तरीके से आप भी रोजा रहकर अल्लाह को मनाते हुए, अल्लाह को राजी करते हुए अपनी जो खबर, अंधेरी खबर है, उसको उजाला कर लीजिए। अपने लिए जन्नत में घर बनाइए। ये मुकद्दस, ये मुबारक दिन जो पहला दहा है रमजान मुबारक में, पहला दहा जो हो वो रहमत वाला दहा है। 10 दिन रहमत के होते हैं। बंदे गिड़गिड़ा के दुआ मांगना कि परवरदिगार, कहां कहां क्या कुछ नहीं हो रहा, जरा गौर कीजिए। फलस्तीन में कई मुसलमान मर रहे, मेरे मुसलमान भाई, मेरे गौर कीजिए। आप सहरी कूटते हैं, आप सहरी कूटने के बाद देखिए आप कि मंजर क्या होता है। देखिए आप सहरी करने से पहले तहज्जुद कूटते हैं, आप तहज्जुद पढ़ने के बाद मंजर देखिए कि कई फलस्तीन में मुसलमान मर रहे हैं, कई फलस्तीन में मुसलमान कट रहे हैं। वो मुसलमानों के बारे में हम कभी सोचे? हम तो सुकून से है, लेकिन वो मुसलमानों के बारे में सोचिए। रमजान मुबारक महीना आया, अगर हाथ उठा के आप अल्लाह से दुआ कर लेंगे तो क्या पता कि अल्लाह की रहमत नादिल हो गई, तो बैतुल मुक़द्दस की भी हिफाजत हो जाएगी और फलस्तीन के मुसलमान भी बच जाएंगे। यूपी में, गुजरात में जगह जगह मुसलमानों को मारा जा रहा। जरा गौर कीजिए मेरे भाई, थोड़ा दर्द पैदा कीजिए अपने अंदर। ऐसा कठोर दिल बन के मत बैठिए। आप अपने दिल को साफ कीजिए। हमारे अंदर एक दूसरे से दुश्मनी होंगी। रमजान मुबारक का पैगाम आपको दे रहा हूं कि अपने दिल की दुश्मनियों को दूर कर दीजिए। आप दिलों में मोहब्बत पैदा कीजिए। उल्मा है तो उल्मा अपनी दुश्मनियों को दूर कीजिए, मुसलमान है तो मुसलमान अपनी दुश्मनियों को दूर कीजिए, भाई है तो भाई की दुश्मनी को दूर करो, और दोस्त है तो दोस्त की दुश्मनी दूर करे। अरे अल्लाह के लिए, वो परवरदिगार अजीम के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए एक दूसरे को माफ कर कर अल्लाह को राजी कर लीजिए। ये बेहतरीन मौका है हमारे लिए। मौके को देखो, देखो कई लोग मर रहे हैं, कई लोग कट रहे हैं। हमारे मस्जिदें हमसे छीनी जा रही है, इसलिए कि हम नमाज न पढ़ने की वजह से, इबादत न करने की वजह से। रमजान मुबारक का महीना आया, हमको एहतराम करना है, हमको एहतमाम करना है। हम मुसलमान रह के दर दर निकल के जा रहे, होटलों में बैठ जा रहे, निकल के जा रहे, ये वो खा रहे, पान गुटके वगैरह खाते फिर रहे। हम कैसे मुसलमान हैं भाई? अगर वो खाने से पहले, वो चाय पीने से पहले, वो फलस्तीन के मुसलमान जो कट रहे, उनके जो लाशें उठ रहे हैं, उनके जो जनाजे उठ रहे, उनको देखो। इंटरनेट का जमाना है, देख के पहचानो वो लोगों को, तो कैसा गुजार रहे वो लोग। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई ऐसे हजरात को हमने देखा है कि बार बार माँ को डराते हैं। अरे माँ तो हमारे लिए जन्नत है। माँ की दुआ से इंसान आगे बढ़ता है। माँ बाप की दुआ से अल्लाह ताला रहम फरमाता है। माँ बाप की दुआ से अल्लाह ताला कारोबार में तरक्की अता फरमाता है। माँ बाप की दुआ से इंसान की जिंदगी बेहतरीन जिंदगी बनती है, क्योंकि माँ बड़े दर्द के साथ बेटे को पैदा किया है, बाप बड़ी मुश्किल से बेटे को पाल रहा है। वो माँ बाप को डराते हैं। हदीस में फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ताजदार कायनात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेंबर पर तशरीफ फरमाते जा रहे थे, जुमा का दिन था, आमीन फरमाया। दूसरे सीढ़ी पे ठहरे, आमीन फरमाया। तीसरे सीढ़ी पे गए, आमीन फरमाया। उसके बाद जुमा की नमाज हो गई। तमाम लोगों ने पूछा
सहाबा इकराम ने कि आका आज अजीब बात होगी, मेंबर पे आपने 3 दफा आमीन कहा है, वजह क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस वक्त मैं जुम्मा के लिए जा रहा था, जाते जाते मैं देखा कि जिब्राइल मेरे बाजू का है, और जिब्राइल अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, आज जी चाहता है कि मैं दुआ मांगू, आज मेरी दुआ मांगू और आप आमीन फरमाए तो अल्लाह दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो वो दुआ मांगने लगे, आज जिब्राइल दुआ मांगे और मैंने आमीन फरमाया है। देखिए जरा गौर कीजिए, जिब्राइल भी दुआ मांगते हैं। जिब्राइल तो फरिश्ते हैं, नबी तो हमारे हैं, हम उनके उम्मती हैं। उनकी बातों पे, उनकी सुन्नतों पे अमल नहीं करेंगे तो क्या फायदा हम मुसलमान रह के? बताइए आप। मिंबर पे अल्लाह के रसूल जा रहे थे, जिब्राइल दुआ मांग रहे, हलाक हो जाए वो शख्स माह रमजान मुबारक पाए और रोजा रखे फिर भी उसकी बख्शिश ना हो, ये दुआ मांगे। अल्लाह के रसूल ने आमीन फरमाया है। दूसरे मेंबर पे जब गए, जिब्राइल दुआ मांगे, हलाक हो जाए वो शख्स जो माँ बाप को आखिरी वक्त पाए, माँ को या बाप को, और उनको उनकी गुस्ताखी करे तो वो शख्स जहन्नमी है, वो शख्स की बख्शिश नहीं होती, मगफिरत नहीं होती। उसके बाद तीसरी दफा जब मेंबर पे जा रहे थे तो जिब्राइल दुआ मांग रहे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका बखील है वो शख्स जो आपका नामी नामी इसमें गिरामी आए और आप पे दरूद शरीफ ना पड़े। 3 बातें बताई गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। तीन बातें बताई है। सहाबा इकराम हैरान हो गए, पूछने लगे, या रसूलल्लाह, रोजे रहने के बाद भी किसी की बख्शिश नहीं होती? तो फरमाया कि हाँ, रोजा रहने के बाद इंसान का आंख का भी रोजा होता है, हाथ का भी रोजा होता है, हर चीज का रोजा रहता है। रोजे की हालत में किसी को गलत नहीं देखना चाहिए। रोजे की हालत में गीबत चुगली नहीं करना चाहिए। रोजे की हालत में जबान से किसी को हिस्स बोलने का हुक्म नहीं है। रोजा रखने के बाद फकत अल्लाह की इबादत करना है, सजदे करना है, कुरान मजीद की तिलावत करना है। ये करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो उसकी बख्श, रोजा रहने के बाद भी ये तमाम चीज जारी रखेंगे जैसा आम दिनों में जारी रखते हैं तो उसकी बख्शिश नहीं होती। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि माँ बाप को आखिरी वक्त तक पाए, माँ या बाप को इतनी खिदमत करने के बाद भी उसकी मगफिरत नहीं होती। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हाँ, माँ बाप को आखिरी दम तक, माँ को या बाप को या दोनों को खिदमत करते करते अगर कोई बच्चा गुस्से की नजर से भी देखा तो उसकी बख्शिश नहीं होती, उसकी मगफिरत नहीं होती। फरमान लगे कि माँ कुछ भी कहे, उम्र के तगाजे की हालत में, उम्र का तगाजा है, अगर गुस्से में कुछ भी कहे तो सब्र करना है बेटे का काम। माँ बाप पे कभी भी इस लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं करना, गुस्सा नहीं करना चाहिए, गलत लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वरना बख्शिश नहीं होती। और अल्लाह के सहाबा करम फरमान लगे, या सुना आखिरी बात, तो फरमान लगे कि ना, जो शख्स आका जो आपका नामी नामी इसमें गिरामी आया और आप पे दरूद ना पड़े तो वो वकील है। तो फरमान आका ने फरमाया कि जो भी मेरा उम्मती है, मेरा नाम आए और वो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, अगर वो नहीं पढ़ेगा तो वकील है और वकील का ठिकाना जहन्नम है। तो बताया गया है कि रमजान मुबारक में माँ बाप की रोजा भी रखना है, माँ बाप की खिदमत भी करना है और दुरूद शरीफ का विर्द भी करना है। अल्लाह कहता, अल्लाह के रसूल ने कितना प्यारा निजाम बनाया है कि रोजेदार 5 नमाज पढ़ने के बाद 5वीं नमाज में ईशा की नमाज होती है, नमाज होने के बाद तरावी पढ़ते हैं, तरावी में कुरान पढ़ते हैं। हाँ पिता कुरान पढ़ते, तमाम लोग कुरान समाप्त करते हैं। जरा गौर कर दीजिए कि कितने खुश नसीब है, खाली वक्त कोई बंदा कुरान सुनता है। क्या है, गौर कीजिए आप, खाली वक्त कोई कुरान नहीं सुनता, लेकिन ये वक्त में कुरान सुन रहा है, कितने खुशनसीबी की बात है। गौर कीजिए, कुरान सुन रहे हैं और कुरान के एक एक हुरूफ पे 10-10 नेकियां पढ़ने वालों को और सुनने वालों को, और रमजान मुबारक में एक नेकी के बजाय 70 नेकियां का सवाब मिलेगा, 700 नेकियों का सवाब मिलेगा। जरा गौर कीजिए, खाली वक्त कोई कुरान सुना रहे तो नहीं सुनते हम। अब तो मौका मिला कुरान सुनने का, 6666 आयतों का सुनने का मौका मिला है, 30 पारों का सुनने का मौका मिला है। तो मुसलमान भाई, मुबारक है, सुनते जाइए, कुरान सुनते जाइए। इसलिए वो कान मुबारक है जो गीबत से बचते हैं और अल्लाह का कलाम सुनते हैं। माह रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आया,
फरमाने लगे अल्लाह के रसूल कि ऐ लोगों, रोजा ढाल है, ये रोजा ढाल है, रोजा ढाल है, ढाल है रोजा। मतलब क्या है, जंग में जब जाता है तो एक हाथ में तलवार होती है, दूसरे हाथ में अपने आप को बचाने के लिए एक लोहे का ढाल होता है। जब बंदा जंग में आगे बढ़ता है तो कोई वार करता है तो वो ढाल से उसको बचा लेता है। तो अल्लाह के रसूल फरमाने लगे कि रोजा जो है तुम्हारी ढाल है, दोज़ख की आग तुम्हारे करीब नहीं आ सकती, रोजा ढाल बन के तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा और रोजा तुमको बचा लेगा, रोजा तुमको बचा लेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया है तो कितना प्यारा है। और फरमाने लगे हर चीज की तहकीक होगी, हर इबादत की तहकीक होगी, हर इबादत की तहकीक होगी। लेकिन रमजान मुबारक में बंदा जब रोजा रहता है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये रोजा जब बंदा रहता है तो उसकी जजा खुद मैं हूं, फरमा रहा अल्लाह ताला। रोजे की जजा खुद अल्लाह ताला है। जरा गौर कीजिए, रोजा बंदा रहता है लेकिन रब को मालूम होता है, रब के देने वाले हाथ दिखते नहीं है, लेकिन वो देता जरूर है, देता जरूर है। जरा गौर करने वाली बात है। आप थोड़ा तवज्जो कीजिए, क्योंकि फी जमाना मुसलमानों पे जुल्म ज्यादती बहुत ज्यादा हो रही, लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नमाज में बैठ के दुआ तो कर सकते हैं, दुआ तो कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज को उठिए, हदीस मुबारक में है अल्लाह ताला फरमा रहा है फरिश्ते से कि आए फरिश्तों, जाओ अनमोल चीज लाओ। तो फरिश्ते तमाम ढूंढने लगे, जमीन पे घूमने लगे, देखने लगे कि एक बंदा नमाज पढ़ रहा था, उसकी नमाज लेके चले गए। अल्लाह ताला फरमाते कि नमाज अनमोल है लेकिन इससे भी अनमोल चीज लाओ। तो एक बंदा रोजा रह रहा था, एक रोजा रह रहा था बंदा। जब बंदा रोजा रह रहा था तो रोजा रह रहा था, उसके रोजे को लेके गए फरिश्ते आधी रात के वक्त। जब रोजा, उसके बाद में रोजा लेके जब चले गए तो अल्लाह ताला फरमाते रोजा भी बहुत बड़ी चीज है लेकिन इससे भी अनमोल चीज लाओ। एक बंदा तिलावत कर रहा था, कुरान पढ़ रहा था, तो फरिश्ता गया उसकी तिलावत को ले लिया, अल्लाह की बारगाह में पेश करा, तो कहने लगे ये भी बहुत बड़ी चीज है लेकिन इससे भी अनमोल चीज लाओ। तो एक बंदा तवाफ कर रहा था काबा शरीफ का, तो उसके तवाफ को लेके चला गया, परवरदिगार तेरे घर का तवाफ कर रहा था। तो अल्लाह ताला फरमाया कि बेशक बहुत बड़ी चीज है लेकिन इससे भी अनमोल चीज लाओ। तो फरिश्ता रात तमाम घूम रहा था, देखने लगा कि एक बंदा तहज्जुद की नमाज अदा करके जानीमाज पे बैठकर वो रो रहा था, अल्लाह की मोहब्बत में रो रहा था। उसके आंख से आंसू जा रहे थे, तो वो आंसू जो टपक रहे थे, फरिश्ता वो आंसू को लिया और अल्लाह की बारगाह में चला गया आंसू। तो अल्लाह ताला फरमाया कि मेरी मोहब्बत में रोने वाले का एक आंसू जो है यही अनमोल चीज है और उसको दोज़ख की आग छू नहीं सकती। लिहाजा ऐ मेरे मुसलमान भाई, रमजान मुबारक का महीना आ रहा, रोजे रखो, खुश होके मिलो, एक दूसरे से बगलगिर हो जाओ, एक दूसरे की गलतियों को माफ करो और बाप बेटे भाई बहन तमाम एक दूसरे को माफ करो। और एक जरूरी बात यह है कि हर साल की तरह ये साल भी रोशनी टीवी की जानिब से जो हर उलमा इकराम का माह रमजान मुबारक का जो भी बयान पैगाम लेते हैं, हर एक को दिखाते हैं, तो इसका अज्र सवाब रोशनी टीवी के एडिटर साहब को और जितने लोग हैं तमाम को इसका अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा, नेकियां मिलेगी। अगर कोई भी एक भी बंदा अगर इस पे अमल कर लेगा तो उसको कामयाबी अता हो जाएगी। आपकी टीवी पे दिखाने वाला अगर एक भी हदीस सुन लेंगे, एक भी बात सुन के अगर अमल कर लेंगे, रोजा रख लेंगे, तो रोशनी टीवी वालों को, उनमें काम करने वालों को, तमाम लोगों को उसका सवाब मिलेगा, अजर मिलेगा। और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला रोशनी टीवी वालों को दिन दुगनी रात दुगनी अल्लाह ताला तरक्की अता फरमा दे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।